जब पूरे भारत देश के लोग उस दिन इंडिया ਅਤੇ इंग्लैंड के मैच का लुत्फ उठा रहे सी, उत्थे दूजे पासे मुंबई ਦੀਆਂ सड़कों के उत्ते अचानक बंदूक की ठा सुनाई दिंदी है। मुंबई का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, सीधे उत्थे जाके इन्हें टैररिस्ट वालों अटैक किया गया। क्या उस टाइम पे फर्स्ट रिएक्शन आया आपके दिमाग में जब आपको पता चला कि ऐसा एक अटैक मुंबई में हो गया है और आपको वहाँ जाना है? कश्मीर में हमारे इतने एनकाउंटर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो दरवाजे पर चल कर आई है। ये हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको यहाँ पर मारे। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि आतंकवादी हमारे घर में खुद आ गए मरने के। हमारा तो काम, तो हम इनसे घबरा जाएंगे तो अब एक सैनिक घबरा जाएगा, एक कमांडो घबरा जाएगा, तो बाकी जनता का क्या हाल होगा। मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो टीम्स आपकी भेजी गई थी उसके फ्रंट में आप थे। जी, मैं अपॉइंटमेंट था, यानी कि टीम को लीड करने वाला मैं ही था। 26/11/2008 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਠਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਸਾਬ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਮਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੁਕਾਰਾਮ ਓਮਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੈਰਲ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਜਰ ਸੰਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਰਕੋਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇਵਤੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ, ਤਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, एक सैनिक जो भी कुछ करता है वो देशवासियों के लिए करता है और देश हित में करता है। ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਵਤੀਆ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ करावांगे। सो तेतिया जी, सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब 26/11 अटैक की बात करते हैं तो शायद हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो वो शायद सामने से वो तस्वीरें, वो मंजर आपने सामने से देखा, पर हमने वो सिर्फ तस्वीरें देखी। अगर हम तस्वीरों से इतना डर सकते हैं तो आपने तो सामने से देखा था। क्या उस टाइम पे फर्स्ट रिएक्शन आया आपके दिमाग में जब आपको पता चला कि ऐसा एक अटैक मुंबई में हो गया है और आपको वहां जाना है? मैं उस दिन ड्यूटी पे था अपनी जी। और जब मैं रात को 12 बजे मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा जी तो जो हमारे ऑफिसर ऑफ द डे थे जी उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से एक टेररिस्ट हमला हुआ है और टीवी पे सब चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी ऑलरेडी 2 टीम जा चुकी हैं, एक ट्राइडेंट में और एक ताज में। तो वो ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है और हम दोनों, मैं और जो ऑफिसर थे उस दिन, दोनों कश्मीर में तैनात थे। तो हमने बहुत ढूंढा कश्मीर में, हमारे इतने एनकाउंटर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो दरवाजे पर चल कर आई है। ये हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको यहाँ पर मारे। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि आतंकवादी हमारे घर में खुद आ गए हैं मरने के लिए। तो ये तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अगर मेरी बात कहें तो। और बात ऐसी है कि ये कि हमारा तो काम है जी। तो हम इनसे घबरा जाएंगे तो अब एक सैनिक घबरा जाएगा, एक कमांडो घबरा जाएगा, तो बाकी जनता का क्या हाल होगा। बिल्कुल। दूसरा, हमारी जो ट्रेनिंग है हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। और जो ट्रेनिंग है वो एक उच्च स्तरीय ट्रेनिंग है जी। एक वर्ल्ड लेवल की, कहें कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से होकर हमको गुजार कर उस लेवल का बनाया जाता है कि ना तो हमारे अंदर कोई डर रहता है, ना कोई इमोशन रहता है, ना हमारे अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग होती है कि हम कोई डेड बॉडी देखें या कोई खून देखें तो हमारे अंदर डर हो जाए, या कि आतंकवादी का नाम सुने तो डर जाएं। हमारा काम है कि हम जिस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं और उन ट्रेनिंग्स में हम हर चीज़ को ध्यान रखते हैं। सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, टेररिस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करना होगा, रिफ्लेक्स फायरिंग में कैसे कैसे, यानी कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो बंदे को सिखाया जाता है जी। क्योंकि कमांडो का काम है छोटी टीम में एक बड़ा धमाका करना। छोटी टीम रहती है लेकिन धमाका और जो कार्य होता है वो इस लेवल का होता है कि बड़ी से बड़ी कंट्रीज उस धमाके से घबरा सकती है, डर सकती है। तो ये हमारे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करें, टेररिस्ट को मारें और देश को सुरक्षित रखें। जी। तो एक नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन हमको चीज़ों को समझना होता है बिल्कुल कि कंडीशंस क्या क्या हैं, स्थिति क्या होती है उस वक्त। हाँ, उस समय पे कंडीशंस और कंडीशन किस लेवल तक जा चुकी है और जो लोगों के अंदर डर का माहौल है वो लेवल क्या है। अब हमको रूम इंटरवेंशन किस तरह से करना है, बिल्डिंग में इंटरवेंशन करना है तो किस तरह से करना है, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या फॉलो करने हैं, टीम किस किस तरह से फॉर्म होंगी, तो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली चलती हैं। आपको ज़्यादा एक बार क्योंकि ट्रेंड है सारे के सारे, तो आपको बस हम लोग आंखों पे आंखें डाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला समझ जाता है कि बंदा क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। तो ये हमारा काम, हाथ वाथ भी ज़्यादा हमारा मूवमेंट नहीं था, हमारा आंखों से ही काम चल जाता है। सो मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो टीम्स आपकी भेजी गई थी उसके फ्रंट में आप थे। जी, मैं पॉइंट मैन था, यानी कि टीम को लीड करने वाला मैं ही था, मेरे पीछे मेरे टीम कमांडर थे। जो पॉइंट मैन होता है, कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी होती है पहली गोली चलाना और पहली गोली खाना, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बंदा है उसका जो आर्क ऑफ फायर है वो 190 डिग्री होता है। हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो 180 है, तो उसके बाद हम लोग आइज का कॉर्नर अगर लेते हैं तो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर और बढ़ जाता है जी। तो 190 डिग्री पूरा का पूरा कवर करके जो बंदा है, फ्रंट बंदा जिसको हम पॉइंट मैन कहते हैं, पूरा 190 डिग्री कवर करके चलता है। तो उसकी एजिलिटी हम लोग कहते हैं, फुर्ती एक लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि वही एक बंदा है जो पूरी टीम को बचा सकता है, वही एक बंदा है जो पूरी टीम का मतलब सत्यानाश कहें कि या फिर डेथ के मुंह में सबको ढकेल सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी कहें कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसका जो रिफ्लेक्स हैं वो बहुत अव्वल दर्जे के होने चाहिए। एक्टिव रिफ्लेक्स मतलब आप विद इन 2 to 3 सेकेंड रिफ्लेक्स में, मतलब आपके बैरल से गोली निकलनी चाहिए। मतलब जैसे देखा आपके ट्रिगर पे उंगली रहेगी, ट्रिगर पे उंगली बस आपको बस प्रेस करना, टारगेट एंड प्रेस, इतना आपके रिफ्लेक्स इतने अच्छे होने चाहिए। तो जब आप ताज में एंटर किए, क्योंकि आपकी जो डायरेक्ट पोस्टिंग शायद ताज में हुई थी, तो जब आप ताज में एंटर किए जी। तो एंटर करते सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपके सामने क्या था? और क्योंकि
ये स्थिति कुछ ऐसी होती है, उस समय आपको ऑन द स्पॉट सब कुछ जो है प्लान करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप प्लान करके जाते हैं, कई बार चीजें सामने से उल्टी पड़ जाती है। एक्चुअली क्या था कि हमारे पास में ताज का कोई ब्लूप्रिंट था नहीं। बिल्कुल जो मार्कोस की एंट्री थी वो बिल्कुल ब्लाइंड एंट्री थी। हम लोग जैसे ताज के अंदर लॉबी में गए तो लॉबी में हमने पूरा का पूरा जो सैटर्ड कह दे पूरा बिखरा हुआ था, वो खून ही खून था चारों तरफ, शीशे वगैरह थे वो सब टूटे हुए थे, फैला हुआ था। और जो मुंबई पुलिस थी उन्होंने अपना अपना कवर ले रखा था, क्योंकि मुंबई पुलिस कैपेबल नहीं थी कि टेररिस्ट के साथ में भिड़ सके। एग्जैक्टली। तो फिर हमको उस जगह पे हमने पूरा कवर किया और मैं उस जगह पे खड़ा रहा जहाँ ओल्ड हेरिटेज और न्यू हेरिटेज विंग दोनों मिलते हैं। मतलब मिडिल पॉइंट उसका। हाँ, मतलब जो नीचे से मिलता है दोनों, और ऊपर किचन से दो ही जगह है, जो एक टावर और एक ओल्ड हेरिटेज। ठीक है। दो अलग अलग हैं, ये ताज के ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो जहाँ पे वो एंट्री होती है नीचे से लॉबी जुड़ती है, मैं उधर खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा एक बंदा फ़ोन कर रहा था और रो रहा था। तो वो मुझे क्रॉस करने की कोशिश की पहले तो उसे, तो मैंने उसको रोका कि भाई साहब आप नहीं जा सकते। तो बोला कि मेरी फैमिली है ऐसे ऐसे, वो फ़ोन नहीं उठा रही है और आंखों से बुरी तरह पूरे आंसू बह रहे थे। मैंने बोला हम आपको नहीं खो सकते। उस इंसान को आपके पहचाना, वो कौन था? बाद में मुझे पता चला वो ताज के जनरल मैनेजर थे, करमवीर सिंह कैंग। ओके। तो उनकी फैमिली वहाँ पे और दो बच्चे 6th फ्लोर पे जल के मर गए थे। ओके। तो वहाँ पे वहीं पे थे और वो जाने की कोशिश करते, मैंने उनको रोका कि नहीं आप नहीं जा सकते, जो भी काम है वो हम जितने भी कमांडोज है वो करेंगे, चाहे जिसका भी रेस्क्यू है वो हमारा काम है। फिर एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि करीब करीब 150 से ज़्यादा लोग चैम्बर हॉल में फंसे हुए हैं ताज के टावर के, जी, जो कि 2nd फ्लोर पे था। तो फिर एक टीम बनी, उस टीम को लीड मैंने किया पूरा। इनिशियली से भी जब एंट्री की थी तो मैं फर्स्ट ही था। उसके बाद जब नई टीम फॉर्म हुई तो उसका पॉइंट मैन भी मैं ही रहा। तो फिर मुझे क्रॉस करके एक बंदा और आगे निकल के टीम को बताने लगा, जो कि ताज का सिक्योरिटी का हेड था जी। तो मैंने उसको रोका कि भाई कहाँ जा रहे हो, अगर गोली आएगी तो आपको लगेगी, आपके पास ना वेपन है ना कुछ है, अगर सब कुछ करना है तो हम करेंगे, आप पीछे से मैं गाइड करो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमें गाइड कौन करेगा? एग्जैक्टली। आप हमें पीछे से गाइड करो, बताओ कहाँ पर है, मतलब लोकेशंस क्या क्या है और जी हमें कुछ नहीं पता, तो पीछे से बताओ, आगे कुछ हो गया तो भाई उसकी जिम्मेदारी किसकी? उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो वी आर हियर टू टेक बुलेट फॉर यू, वी आर नॉट अलाउइंग, वी विल नॉट अलाउ यू टू गो। आप पीछे रहो और हम नहीं खोना चाहते आपको, हम जो भी है हम देख लेंगे, आप पीछे रहो। तो वो बंदा बाद में मुझे मिला, तो वो सिक्योरिटी मैनेजर था ताज का। ओके। आज वो बड़ा अजीब स्थिति हो गई थी वहाँ पे। जब हम लॉबी में ऊपर पहुँचे तो लॉबी पूरी बंद थी, आगे से दरवाज़ा बंद था, जो कि आधा कांच का था और आधा वुडन था पूरा। तो जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो मैं फ्रंट में था, तो मैंने देखा कि कुछ अफ्रीकन्स उधर से आ रहे थे उस साइड से दौड़ के। तो फिर मैंने नॉक किया और अपना आई कार्ड उनको दिखाया कि वी आर हियर टू रेस्क्यू यू। तो उन लोगों ने उस दरवाजे को खोलने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा ऊपर से लॉक हुआ था। तो फिर वो अंदर वापस अपने चैम्बर हॉल में घुस गए। हम पीछे हटे तो एक और हॉल था। तो हमने जो अपना कमांडो एक्शन होता है उसके अनुसार मैं उसमें एंट्री की। मैंने एक कदम आगे अंदर रखा। तो जो हमारे टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि तेवतिया हॉल कितना बड़ा हमें नहीं पता और हम लोग संख्या में कम हैं, तो मैं एक काम करता हूँ और लोगों को लेकर आता हूँ और कमांडोज को लेकर आता हूँ ताकि हम फुल फ्लैश एंट्री करें और जितने इवैक्यूएशन के लिए ईजी हो जाएगा। प्लस अगर कुछ और घटना घटती है तो उसके लिए हम लोग रेडी रहें। तो फिर मैं वेट किया उनका, और जब वो आए तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप किया कि तेवतिया एंट्री करो। तो मैंने अपना वही एंट्री की। तो 8-10 कदम अंदर रखने के बाद, क्योंकि अंदर अंधेरा था, तो मेरे लेफ्ट हैंड पे दीवार थी। मैं अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड को मैंने पकड़ा, तो दीवार थी। तो मैं जैसे अब दीवार है तो मैं ऐसे हूँ दीवार के, ऐसे मैंने दीवार को टच किया। अंधेरा तो मैंने जो पीछे सिक्योरिटी मैनेजर था जी, मैंने उनसे पूछा कि स्विच किधर है इसके। तो उसको भी एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि स्विच किधर है। और मैं हाथ यहीं पे क्यों रखा हूँ, क्योंकि जितने भी आप घर पे देखोगे स्विच हमेशा
साढ़े 3 से 4 फीट की हाइट के आसपास ही आपके जितने भी स्विच हैं उसी हाइट पे मिलते हैं। इससे नीचे कोई स्विच नहीं रखता। बिल्कुल। तो इसी हाइट पे रहता है, क्योंकि हमारी पूरी ट्रेनिंग का हमारा ये है। तो हम ऐसे ऐसे सर्च कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्विच किधर वो आगे होंगे। तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जैसे बढ़े तो मुझे 2 सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी AK-47 की। तो मैं सेम टाइम आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर 2 टेररिस्ट अवेलेबल हैं। सेफ्टी कैच सेफ्टी कैच होता है AK-47 का। उस मोड है वो। ओके। फायरिंग करने का मोड होते हैं उसको, जो सेफ्टी कैच बोलते हैं उसको। तो वो उसके 3 मोड हैं। एक तो सेफ मोड रहता है और एक सिंगल और एक बस्ट। तो मुझे जो मेरी कैलकुलेशन ने कहा कि इनका जो वेपन था इन्होंने वो सिंगल में रखा हुआ है, अभी इन्होंने इस वेपन को बस्ट मोड पे डाल दिया है। यानी कि अब जो फायरिंग होगी वो पूरी की पूरी अंधाधुंध होगी। हाँ, अंधाधुंध फायरिंग होगी पूरी की। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं वहीं पे सीज हो गया, बैठ गया वहाँ पे। और ओपन एरिया था, एक छोटी सी कुर्सी थी वहाँ पर, एक टेबल थी। तो कुर्सी की मैंने आड़ ली और मैंने अपने चेहरे को वेपन टुकड़े पे उंगली लगाई और जहाँ से मुझे वो आवाज़ सुनाई आई मैंने उधर की तरफ अपना वेपन पॉइंट कर दिया। तो अंधेरे का फ़ायदा उनको मिला, मुझे नहीं, क्योंकि हम रोशनी से आए थे, अंधेरे में था तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कुछ ही करीब करीब ऐसा मानिए कि 30-35 सेकंड बैठे। मैं सोचा कि सैचुरेट कर लूँ अपने आप को। सैचुरेट जैसे ही हो जाऊँगा मुझे सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है जी। आप कितना भी अंधेरा हो हम ढूंढ लेंगे किसी को भी। तब तक उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी, मुझे फ्लैश दिखाई दिया तो मैं समझ गया कि गोली चला दी है। तो मैंने भी अपना ट्रिगर दबा दिया। तो मुझे इतना पता है कि 3-4 गोली मेरी फायर हुई और मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता। जब मेरी आँख खुली तो जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। कान के पास जब खून बहना शुरू हुआ और गरम गरम खून गर्दन के पास से निकला, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। मतलब ये जो आपके कान पे इंजरी है, हाँ, ये पूरा फट गया था। ये तो कान था ही नहीं, पूरा फाड़ दिया था गोली ने। तो इतना दर्द था, बहुत ज़्यादा। और दर्द को सहन कैसे करें? अब मैं कोई भी साउंड करता हूँ तो आतंकवादियों को पता चल जाएगा कि ये बंदा जिंदा है, अलाइव है। हाँ, और मैं नीचे फ्लोर पे पड़ा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा मर गया है, ख़त्म हो चुका है। तो मैंने क्या किया, अपना कोई भी साउंड ना करते हुए जो कारपेट था उसमें पूरी मैंने फिंगर्स को पूरा डाला और जो दर्द था उसको पास करने की कोशिश की। उसके साथ साथ मैंने देखा कि मेरे लिए छिपने के लिए, कवर के लिए जगह कौन सी है यहाँ पर। तो मुझे फिर दिखाई दिया कि सोफ़ा था, सोफ़े और दीवार के बीच में थोड़ा सा स्पेस मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने क्या, अपना जो वेपन था, क्योंकि हमारे सीलिंग में था, सीलिंग से बंधा हुआ वेपन था, पूरा गले में ही है, तो मैंने अपनी थाइस के ऊपर उस वेपन को एक को रखा अपनी, और धीरे धीरे खिसक के मैं सोफ़े और दीवार के बीच में अपनी मैंने जगह बनाई, कवर ले लिया। फिर मैंने अपनी चोट को देखा और भगवान को धन्यवाद कहा कि अगर ये गोली 1 mm भी इधर होती तो पूरा का पूरा आपका सिर पे लग सकती, फाड़ देता पूरा। AK-47 गोली छोड़ दी गया है फिर। तो भगवान को धन्यवाद कहा। प्लस हेड सर के ऊपर है, यानी कि ब्लीडिंग थोड़ी सी हार्ट से ऊपर है तो ब्लीडिंग थोड़ी कम रहेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो मैंने पूरा जो हमारा एज पर तो मेडिकल और सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने कैलकुलेशन अपना लगाया कि मेरे पास में 1 घंटा भी है। 1 घंटे तक मैं इनसे लड़ सकता हूँ बिना किसी बिना किसी रुके। मतलब जो ब्लड है वो, जो मेरे शरीर में जो ब्लड है वो 1 घंटे तक मेरा साथ देगा आराम से। तो मैं 1 घंटे तक इनको फेस कर सकता हूँ। 1 घंटे तक जो मेरी ब्लीडिंग है वो मुझे परेशान नहीं करेगी। यानी कि एक्सेस जो ब्लीडिंग हो रही है वो इस तरह से हो जाएगा कि जो हमारा ब्लड है, अगर हाफ ऑफ द ब्लड आपकी बॉडी से निकल गया जी, तो आपके बचने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये चोट थोड़ी ऊपर है, सर के ऊपर है, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो मैंने कैलकुलेशन से हमारा होता है कि भाई 2 से 3 लीटर ब्लड आगे का आपकी बॉडी से निकलना है, तो धीरे धीरे 1 घंटे से ऊपर का समय चाहिए ऐसी चोट को। तो पूरी कैलकुलेशन 1 घंटा मेरे पास में है। अब मुझे उस 1 घंटे का सदुपयोग करना है। कैसे उस 1 घंटे में पूरे ऑपरेशन को इंगेज करें और कैसे इनको यहाँ पर मारे। तो हमारी फायरिंग चलती रही आपस में। तो मैंने दोबारा फायरिंग ओपन कर दी। तो जैसे ही मैंने फायर ओपन किया तो उधर से भी बस्ट में मेरे ऊपर फायर आ रहा था, तो मैं सिंगल शॉट ले रहा था उनके लिए और उधर से बस्ट, ताकि इंगेज करना था। तो काफ़ी देर होगी, तो मैंने सोचा कि यार इनको अब मेरे पास ना कम्युनिकेशन सेट है,
मेरे पास हेलमेट नहीं है, जो मैंने सेफ्टी गियर मेरे पास में उतने जो महत्वपूर्ण थे वो नहीं थे। मैं नॉर्मल एक जो बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने पहनी थी, वो श्योर थी कि वो AK-47 की गोली नहीं रोक सकती। तो इसको भी मुझे ध्यान रखना था कि ये जो मैंने पहना हुआ है वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि रेंज 10 से 12 मीटर ही है। तो उस रेंज से वो AK-47 की गोली नहीं रोक सकती थी। नहीं रोक सकती। जो मतलब अगर एक जो वेस्ट आपने पहनी थी, एक जस्ट मिसाल के तौर पे बात करते हैं, जो बुलेट प्रूफ वेस्ट आपने पहनी थी वो अगर AK-47 की गोली को रोक सके या उसको प्रोहिबिट कर सके, तो कितना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए? मिनिमम 50, मतलब 50 मीटर का मिनिमम होना चाहिए, तब वो रोकेगी, तब वो रोक सकती है। अच्छा, मतलब ये तो 10 से 12 मीटर लगभग 20 फीट का रास्ता, 20-22 फीट का नहीं रास्ता रोक सकती। तो ये मुझे श्योर था कि गोली अगर कुछ होता है तो गोली ये जो जैकेट है, प्लेट है, वो रोक ही नहीं सकती है। जो प्लेट मैंने पहनी थी वो प्लेट थी 9mm जो पिस्टल्स उसकी गोली को रोकने के लिए वो थी। ओके। तो एक की गोली को रोकने के लिए नहीं थी। तो ये भी मुझे पता था कि देखिए वही कहते हैं कमांडो का दिमाग चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, एक्टिवली चलते रहना चाहिए। अगर वो वहाँ पर है तो वहीं पर रहे। मैं कई जगह पे बोलता हूँ कि अगर जहाँ पर आप हो आप उस समय पर वहीं पर रहे, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, दिमाग आपका कहीं और है, तो ये भी काम खराब हो जाएगा और वो भी खराब हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो चीज़ें मुझे ट्रेनिंग में मुझे सीखने को मिली, वो चीज़ यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी मैंने अप्लाई की। जितना भी हमें सीखने को मिलता है ट्रेनिंग के, तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प की वहाँ पर अपने आप को मैनेज करने के लिए। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड है, तो मैंने उसको निकाला, पिन खींचा और बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस ग्रेनेड की रेंज में हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे पास मौका मिला है, शायद ईश्वर ऐसा मौका दे, जैसा मैंने पहले बताया आपको, बिल्कुल, कि ये तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब यूनिट में थे तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सामने है सब कुछ। और ऐसे मौके पर अगर सैनिक चूक जाए तो फिर वो चूका ही हुआ रह जाता है। तो मैंने अपना 100% फिर डाला कि नहीं, अगर मुझे कुछ होता है तो होने दो, लेकिन ये जो आतंकवादी हैं ये यहाँ से बच के नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसे में मैं शहीद भी हो जाता हूँ या मुझे पूरी ज़िंदगी अगर खाट पे भी गुजारनी पड़े तो मैं हंस के गुजारूंगा। तो मैंने ग्रेनेड लॉब किया। तो ग्रेनेड के मुझे 2 साउंड मुझे सुनाई दिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं कंफर्म हो गया कि जहाँ मुझे फेंकना था वो एग्जैक्टली वहीं पर जाके गिर गया है, रुक गया है। नहीं तो क्या रोल डाउन हो जाता है, नहीं तो फिर उसके साउंड कई सारे साउंड आते हैं फिर उसके। तो वो 2 ही साउंड आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मैंने जिस पोजीशन के लिए मैंने फेंका था वो बिल्कुल एक्यूरेट जाकर गिरा। अब मैंने अपना पूरा का पूरा मैंने हेड अपना सर बचाना था, तो मैंने क्या सर को पूरा ऐसे कवर कर लिया और 10 तक मैंने गिना। वो ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता तो जो 59 आवर तक चलने वाला ऑपरेशन था वो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे खत्म हो चुका होता। मतलब ये ग्रेनेड का फेलियर भी हुआ बीच में? हाँ जी, ये बहुत बड़ा फेलियर था पूरे ऑपरेशन में, पूरे ताज के ऑपरेशन में। ये सबसे अहम बात हुई। ओके। दूसरी फिर बात हुई कि जो हमारी टीम थी जी, उन्होंने सिक्योरिटी मैनेजर से पूछा कि इस रूम का कोई और दरवाज़ा भी है और कोई और एग्जिट भी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही एंट्री और यही एग्जिट है। तो हमारी पूरी टीम वहीं पर लग गई और हमारी टीम ने क्या सोचा कि प्रवीण तेवतिया अंदर शहीद हो चुका है, जबकि मैं अंदर जिंदा था। तो उन्होंने नेक्स्ट एक्शन क्या किया, कंफर्म हो गया कि यही एंट्री और यही एग्जिट है जी, और अंदर प्रवीण तेवतिया जिंदा नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, तो बता नहीं पाया मैं जिंदा हूँ। तो उन्होंने एज्यूम किया, क्योंकि इतनी देर तक कोई सैनिक जिंदा रहता नहीं है। आफ्टर अ फायर, मतलब एक फायर हो जाए बहुत बड़ा, हाँ क्रॉस फायर हुआ है, तो ऐसी जगह पर चांसेस है कि वो बंदा शहीद हो चुका है, क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ अंदर से कुछ ना हो, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने अंदर टीयर गैस ठोक दी, टीयर गैस का सेल डाला। तो टीयर गैस का सेल भी मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ, तो उससे ऑक्सीजन कट ऑफ होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो मुझे खांसी जैसी आई, तो उन्होंने फिर बस्ट मारा। तो बस्ट मारने के बाद फिर मुझे लगा कि अब कहानी खत्म। अब पहले तो मेरा यही चांस था कि मैं भारी हो रहा था उन पे, अब ये मेरे ऊपर भारी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एक और कंडीशन यहाँ पर आ गई है कि ऑक्सीजन नहीं आएगी। तो फिर मेरे पास A और B 2 ही हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, C था ही नहीं। तो 2 ऑप्शन मेरे पास में थे, प्लान A प्लान B हम लोग कह सकते हैं उसको।
प्लान ए था कि भाई इस जो सिचुएशन को फेस करो, जो ऑक्सीजन कट ऑफ हुई है, तो क्योंकि आपके आंखों में पूरा का पूरा पानी बहता रहेगा, ऑक्सीजन कट ऑफ है, तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ होगी। दूसरा ऑप्शन ये था, और फिर धीरे धीरे आपकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। अब भाग नहीं सकते क्योंकि सामने 4 आतंकवादी है। तो मैंने फिर निर्णय लिया बी प्लान पे कि भाई अब एक जो सैनिक है वो अपनी आखिरी यात्रा तय करने वाला है, और उस आखिरी यात्रा में वो अपना जितना बचा हुआ है उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश करे। तो फिर मैंने अपने वेपन को हिप पे लिया, और फिर मैंने हिप पे रख के फिर पूरे एरिया को मैंने स्विप किया खड़े होकर। फायरिंग आप शुरू कर दी। स्विप कर दिया पूरे एरिया को जहाँ से था। तो उस फायरिंग में एक टेररिस्ट को गोली लगी, जो उसकी डेथ बाद में हुई। लेकिन जब मैं फायरिंग कर रहा था तो उधर से फायरिंग आई। तो उस फायरिंग में 3 गोलियां मेरे चेस्ट के ऊपर आई। एक गोली कॉलर के पास से निकल गई। जब 3 आई तो एक तो मैगजीन में घुस गई पूरा, उसकी स्वेलिंग आज तक भी है। 1 mm बुलेट प्रूफ प्लेट का बचा था, क्योंकि मैगजीन थी, मैगजीन दोनों मैगजीन भरी हुई थी AK-47 के राउंड से, तो पूरी उन सबको फाड़ते हुए निकल गई। और इतना मोटा बड़ा छेद उसने प्लेट में कर दिया। दूसरी गोली रिकॉचिट होकर लगी, वो हार्ट के ऊपर आई। होता है रिकॉचिट होकर लग जाए, तो रिकॉचिट होकर हार्ट के ऊपर आई, तो प्लेट ने वो रोक दी। रिकॉचिट होकर थी तो सामने से नहीं रोक सकती। लेकिन जो तीसरी बुलेट आई, वो तीसरी बुलेट चेस्ट के आर पार निकल गई, कॉर्नर पे हिट हुई वो, तो उसमें मेरा पूरा का पूरा फेफड़ा फट गया। लेकिन बॉडी मूवमेंट में थी तो मैं दरवाजे तक पहुंच गया। फिर वहाँ से मेरी टीम ने मुझे उठाया और हॉस्पिटल तक मुझे लेकर गए। सो अगर आप बुरा ना माने, अगर वो आपकी गोलियों को निशान अगर आप दिखा सकते हैं तो, क्योंकि शायद जो आपने सारी कहानी बताई, जो दर्शक हमारे हैं जो इस चीज़ को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में उन चीज़ों को इमेजिन उसकी एक चित्र ज़रूर बना रहे होंगे, पर आपने उन सब चीज़ों को सामने से देखा है। ये मैं कहूँगा कि वीरता के निशान है। एक सैनिक की छाती के ऊपर गोलियां लगी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पूरा देश इस चीज़ को देखे और महसूस करे कि एक सैनिक की छाती पर जब गोली लगती है तो कितने निशान छोड़ कर जाती है। तो ये सारे के सारे में इनको बड़े वीरता के निशान हैं, और देशवासी अगर देखना चाहते हैं तो देखें। पूरा ये आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा ये एंट्री बुंड है। ओके, ये एंट्री बुंड है पूरा, ये, और पूरा का देखो पीछे से इसका एग्जिट बुंड है। ओके, सो ये पूरा पीछे तक यहाँ तक पूरा फाड़ यहाँ से निकला बाहर। ओके, सो मतलब ये अपने आप में सोचना एक बहुत कह सकते हैं कि अगर मैं खुद भी इस वक्त सोच रहा हूँ, शायद मेरे भी जो है कह सकते हैं कि गूज बम्स आ रहे हैं, या कह लूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें सामने से देखी। चलिए अगर हम उसके आगे जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन वो लगभग 52 घंटे के करीब वो ऑपरेशन जो चला था, 59 लगभग 60 घंटे हम उसको मान के चलते हैं। सिर्फ एक आपने एक ये भी चीज़ बहुत अहम बताई कि उसमें जो हैंड ग्रेनेड था वो नहीं फटा, जिसकी वजह से शायद ये ऑपरेशन इतना लंबा चला। और उस रूम से मैं तो निकल गया था, और वो जो टेररिस्ट थे, क्योंकि एक रास्ता किचन से जाता था, किचन से जुड़ा हुआ था जी, तो टेररिस्ट वहीं से जो इंजर्ड हो गया था टेररिस्ट, उसको लेकर वो ओल्ड हेरिटेज विंग में किचन के रास्ते से निकल गए। तो जो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन बताई गई कि यही एंट्री और यही एग्जिट है, तो वो गलत हो गई। अगर हमारी टीम को ये पता चल जाए कि किचन की तरफ से कोई रास्ता है, और रास्ता किचन की तरफ से है, तो हम लोग वहीं पे उनको आराम से बैठकर मार देते। हमारी टीम बैठती एग्जैक्टली, कुछ प्लान उस हिसाब से हो जाता, थोड़ी देर लगती है उसमें, कोई ज्यादा आराम से बैठ जाओ, आ जाओ जी, ठोक दो, आओ जी। तो अब भागने का चांसेस नहीं रहता, क्योंकि उधर से भी पूरी टीम है और इधर से भी, तो वो वहां से सतर्क हो गए। फिर उन्होंने फिर जो नेक्स्ट एनएसजी के साथ में जो खेल खेला, वो एक डिफरेंट तरीका का खेल खेला टेररिस्ट ने, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये चीज बच गए हो अभी आप। और एक बार इंसान बच जाता है, जैसे हमने देखा ना क्रिकेटर, तो वो एक बार आउट होने से बच जाए तो और खतरनाक हो जाता है, और उसका हौसला बढ़ जाता है। तो वही हौसला उनका फिर बाद में बढ़ा अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जो जितने लोगों की हत्या हुई थी वो उस रात तक ही हो गई थी। उसके बाद टेररिस्ट किसी और को मार ही नहीं पाए, क्योंकि वो अपने आप को बचाते हुए उनको मौका नहीं मिला, और कुछ मिला ही नहीं फिर। तो इसमें इसलिए मार्कोस का जो पार्ट रहा वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा।
क्योंकि शुरुआती जो है पूरा होटल हमने खाली करवा दिया था, हम्म लेकिन हर रूम को जाके चेक करना, सब कुछ करना एनएसजी ने किया था पूरा। पर इसमें एक चीज़ क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो एक चीज़ इसमें ये भी सामने आई थी। अब कसाब की हम अगर बात करें और भी कुछ जो टेररिस्ट साथ में थे, सुनने में ये भी आया, कहते कि वो इतने बड़ी उम्र के नहीं थे। तो आप खुद एक फौजी हैं, आप कैसे देखते हैं कि इन बच्चों को, मैं बच्चे या नौजवान एक शब्द यूज़ करूं, इन नौजवानों को कैसे माइंड वॉश करके इनके दिमाग में ये सब चीज़ें भरी जाती हैं कि इतने घातक हथियारों को अपने हाथ में लेकर खुद मरने के मंसूबे लेकर लोगों को मारने उतर जाते हैं? देखिए, एक आसमानी किताब है और जो कुछ कट्टरवादी हैं उस आसमानी किताब के कुछ अंश उनको पढ़ाते हैं कि आप जिहाद के लिए पैदा हुए हो, जिहाद करो, और जिहाद करके जो हमारे ऊपर हिंदुओं ने अत्याचार किए हैं तो उन्होंने उस तरह की मूवीज़ बना रखी हैं और मूवीज़ के थ्रू उनके ब्रेन को वॉश किया जाता है, प्लस हदीस के कुछ पाठ दिखाए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है पूरा। उस आसमानी किताब के ही पाठ को कई सारी चीज़ों को बताया जाता है कि काफिर हैं और इनको मारना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और हम लोग इस तरह से, इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, कश्मीर में ऐसे अत्याचार किए हैं। तो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप की उन्होंने पिक्चर बना रखी है पूरी के पूरी। तो उसमें उनको दिखा कर उनके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है। इवन ये जो आप कम उम्र के कह रहे हो, कम उम्र के भी हैं, प्लस जो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हैं, उनको भी ये लोग इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। किस चीज़ से? एक जो रिलीजियस मैटर आता है, और उस आसमानी किताब को पढ़ा कर हर किसी को ये लोग एक ब्रेन वॉश की तरफ लेकर जाते हैं। अगर हम बात करें, अब जब इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, बहुत सारे उस दिन जो कमांडोज थे, वो जो मुंबई पुलिस के कमांडो थे या फिर आर्मी के कमांडोज थे, एक मेजर भी इसमें बाद में शहीद हुए। जब आपको गोलियां लगी थी, हॉस्पिटल ले जाया गया, आपने बताया कि आपका फेफड़ा फट चुका था। तो फेफड़ा एक ऐसी जगह, एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसको हम ये कह सकते हैं कि उससे पूरी बॉडी चलती है। सांस लेते हैं तो हम आगे चलते हैं। उस टाइम पे फिर क्या स्थिति बनी जब आपको अस्पताल ले जाया गया? तो जब अस्पताल पहुंचे तो ऑपरेट हुआ मैं। ऑपरेट होने के बाद में फिर शाम को मुझे होश आया। तो घर वर पे मैंने बात की, उन्होंने डॉक्टर ने बात करवाई, बात कर लो। घर से मेरे भाई आए। तो मेरे भाई को डॉक्टर ने बताया कि ये ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, 3-4 दिन का मेहमान है, क्योंकि पूरा फेफड़ा इसका फट चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो स्टिच करके हमने ऐसे ही डाल दिया है अंदर। और अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई है इसको, और इन्फेक्शन होने के चांसेस 100% है, और इसके बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। यानी कि 3 से 4 दिन का मेहमान है ये, बस। ये चीज़ मेरे भाई ने मुझे फील नहीं होने दी, ना ही उन्होंने मुझे कभी बताया, क्योंकि मेरे बड़े भाई आर्मी में ही हैं और अगले साल उनका रिटायरमेंट है। तो वो मेरे आइडियल हैं, और उनको देखकर ही मैं सेना में गया। पहले आर्मी में भी गया था, लेकिन वहाँ से हाइट छोटी थी तो वहाँ से मुझे रिजेक्शन मिला, लेकिन मैं फिर नेवी में चला गया। तो उन्होंने कभी मुझे ये चीज़ नहीं बताई और मुझे प्रोत्साहित करते रहे। उस प्रोत्साहन का, स्माइल का, और जो डिस्कशन बैठे बैठे बताते रहते थे, कुछ पेपर की बता दी कुछ, तो हमेशा उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी की डोज मुझे देते रहे। उससे क्या हुआ कि मैं धीरे थोड़ा रिकवर करना शुरू कर दिया इस इंजरी से। मुझे इन्फेक्शन नहीं हुए। अगर इन्फेक्शन हो जाते तो कहानी खत्म हो जाती। और कहते हैं कि फेफड़े एक ऐसा ऑर्गन होता है बॉडी में जो खुद को रीग्रो कर लेते हैं। नहीं, ये रीग्रो नहीं करता है। हाँ, आपका जो लीवर है, और लीवर रीग्रो करता है। हाँ, ये फेफड़ा कभी रीग्रो नहीं करता। तो अगर आपका फेफड़ा फट गया है तो आपको या तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और नहीं तो ये कभी रीग्रो नहीं करता। तो अभी फिर आपने इसका क्या करवाया? नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता था। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आप कभी हार्ड वर्क मत करना, फिजिकल कोई एक्टिविटीज़ मत करना, रनिंग वनिंग सब भूल जाओ, स्विमिंग भूल जाओ, अंडर वाटर जो गोताखोरी आप अब तक करते थे वो सब भूल जाओ, और आपकी लाइफ भी अब छोटी हो गई है। उतने साल तक आप नहीं जी सकते जितने आप एक नॉर्मल लंग्स के साथ में जी सकते थे, क्योंकि आपके तीनों लू फट गए थे,
इस राइट साइड वाला जो फेफड़ा है वो सबसे बड़ा फेफड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। तो इसमें 3 लूप होते हैं और तीनों लूप फट गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ज़्यादा हार्ड वर्क करना नहीं है, क्योंकि अगर भी कुछ भी आपको होता है तो आपको बचाया नहीं जा सकता। कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई और उपचार की बात करें, कोई और अलग से कोई उपचार मेडिकल साइंस में नहीं था। तो मेरे सर्वाइवल को मेडिकल साइंस में मिराकल का नाम दिया गया। क्योंकि आज तक के इतिहास में इस तरह से जो केस होते हैं, गन शॉट हुआ है, चेस्ट में हुआ, जिसका फेफड़ा फट गया हो, वो बंदा आज तक कभी जिंदा बचा ही नहीं। तो मैं पहला बंदा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक ही गोली चेस्ट के आर पार निकली हो, 4 रिब्स टूटे हों और पूरा जो फेफड़ा है तीनों लूप डैमेज हो गए और बंदा जिंदा बच गया हो। तो डॉक्टर्स ने मुझे प्रिकॉशंस दिए कि आपको ये सब चीज़ें अब नहीं करनी है, जो थोड़ी बहुत लाइफ बची है उसको भी एंजॉय के साथ जियो। पर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे आपके सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं जिसमें आप रनिंग भी करते हैं, जिसमें आप योगा भी करते हैं, जिसमें आप साइकिलिंग भी कर रहे हैं। तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सका? उसके बाद जब मैं यूनिट में आया वापस, हर तीसरी सांस खींच के लेनी पड़ती थी, सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती थी। 2 साल तक हाथ काम नहीं करता था, रिब्स टूटे थे। तो मुझे पता चला कि एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो एक काम करो, एक बार स्वामी रामदेव जी चैनल पे आते हैं, आस्था चैनल पे, प्रयास करो, शायद कुछ अच्छे रिजल्ट निकले, एटलीस्ट तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। जो चोटें हैं वो जो हीलिंग होनी है, इंटरनल हीलिंग है, वो हो जाएगी। तो फिर मैंने आस्था चैनल के माध्यम से स्वामी रामदेव जी को देखना शुरू किया, पहले समझना शुरू किया, फिर धीरे धीरे प्राणायाम, पहले तो लिया ही नहीं जाता था, पहले खींच इतना ही खींच पाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा इस यात्रा में, मुझे कंफर्टेबल लगने लगा, मैं सांस आराम से ले पा रहा हूँ। और धीरे धीरे जहाँ पर मैं सीढ़ियाँ पकड़ के चढ़ता था, अगर एक स्टेप के ऊपर चढ़ना है तो दोनों पैरों को पहले रखना पड़ता था। 5 से 6 महीने बाद ये फर्क पड़ा कि मैं आराम से एक पैर इस सीढ़ी पर, दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पर रख पाता था। तो इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स मुझे दिखाई दिए वो बिल्कुल अमेजिंग थे। और इसके जो योग के जो रिजल्ट थे प्राणायाम करने के, वो बहुत ही शानदार रहे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाई वो योग आपके लिए कर ऑक्सीजन, आपको सांस लेने का तरीका तो अलग हो जाता है, नॉर्मल सांस हम लेते हैं, लेकिन जो मेन ड्राइव है यूनिवर्स की हमारे, वो है ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रहेगी और जितना हमारा बॉडी में ऑक्सीडेशन ज़्यादा रहेगा, उससे हमारी बॉडी एक तो जल्दी हील करती है, प्लस आपके जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो आपके बिल्कुल ठीक ठाक काम करते हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगर कोई भी अंदर आपके चोट लगी है तो पूरा शरीर उस चोट को ठीक करने के लिए लग जाता है। तो उसमें अहम भूमिका है आपके ब्लड की और आपके ऑक्सीजन, क्योंकि वही रीजनरेट करती हैं सारी चीज़ों को। अगर हमारे कोई फट गया, टूट गया, तो उसको रीजनरेट किया जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लंग्स का साइज जो था, वो जो बचा हुआ था, वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। लेकिन अभी भी ये उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से बाकी सामान्य एक आम इंसान के काम करते हैं। मैं फील कर सकता हूँ, मैं सांस लेता हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ फेफड़ा है, आपको फील नहीं होता। आपका बैलून की तरह काम करता है, मेरा बैलून की तरह काम नहीं करता। तो उस यात्रा ने, योग की यात्रा ने मुझे साधारण से असाधारण कार्य करने के लिए, मैं कहूँ, एक ऊर्जा दी, एक प्रकाश दिया। तो उस प्रकाश की लौ से मैं फिर आगे बढ़ा। 4 साल के लगातार प्रयास से मैं उस लेवल तक पहुंचा कि मैं एक रिस्क ले सकता था दौड़ने का, स्विमिंग करने का। तो वो मैंने 2012 में लिया। दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ी, मैनेज करना था, समझना था, क्योंकि जो पुरानी मसल मेमोरी थी वो तो रहेगी, वो आपको तेज दौड़ने के लिए कहेगी। वो तेज दौड़ा दे रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। तो उसको दोबारा जीरो से शुरू करना, अपने आप को समझना, आपकी मसल्स को, क्योंकि वो उनके अंदर पुरानी मेमोरी है, उस मेमोरी को इरेज करना, अपने शरीर को पढ़कर उसको दोबारा एक नया उसको नए ऑर्डर में डालना आसान नहीं होता। तो उन सब चीज़ों को मैंने दोबारा
दोबारा मसल मेमोरी बनाई उनकी और दोबारा से धीरे 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 एक यात्रा शुरू की। 3 बार आयरन मैन का भी आपको खिताब मिल चुका है। सो वो आयरन मैन का खिताब सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, ये मिलता कैसे? क्योंकि बहुत सारे दर्शक शायद ये होंगे जिनको पता ही नहीं है। हाँ, अब मैंने कैप भी आयरन मैन की पहनी है। तो मैं धीरे धीरे मैंने 2015 में रिस्क पे, क्योंकि डिफेंस अलाउ नहीं कर सकती थी, तो मैंने किसी और के नाम से मैंने हाफ मैराथन दौड़ी मुंबई में, और वो मैराथन मैंने 1 घंटे और 53 मिनट में पूरी की, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। तो उससे मेरा एक हौसला मुझे जगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उससे पहले मैंने अपना एप्लीकेशन डाला था माउंटेनरिंग के लिए, वो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स थे। हाँ, लेकिन ये क्या था, सिविल में था और मैं अप्रोचेबल था, तो मैंने किसी और का बिब लेके जाके मैंने चेस्ट नंबर जिसको वो दौड़ ली, हिम्मत बनी। फिर मैंने अगले साल 2016 मैंने फुल मैराथन दौड़ी, फिर और मेरी हिम्मत खुल गई। मतलब एक हिम्मत के ऊपर कहते हैं ना बेस बनना शुरू हो गया, मुझे एक टारगेट दिखाई देने लगा और मुझे वो बड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है कि जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो आपकी बॉडी में 3 बड़े हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। तो पूरी बॉडी इतनी फ्रेश रहती थी मेरी, जैसे अभी मैं खूब दौड़ता हूँ, खूब व्यायाम करता हूँ, खूब प्राणायाम करता हूँ, तो अभी भी मुझे लगता है कि एक हंगर अभी भी बाकी है। आयरन मैन 2018 में साउथ अफ्रीका में, तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था अपने यूनिट में, तो मेरा लोग वही कहते हैं ना मजाक खूब उड़ाते थे। तो पहले कहने लगे कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, तो वो चीज़ डाइजेस्टेबल नहीं थी किसी के लिए भी, तो वो क्या करते थे, कहते थे बोला ये तेवतिया पागल हो गया। अच्छा। पागल हो गया, पहले नाम रखा गया पागल। मेरा तो रोज का काम है, मुझे ट्रेन करना है अपने आप को। फिर एक शब्द उन्होंने जोड़ा कि तू मिल्खा सिंह बनेगा क्या? तो मैं फिर भी चुप रहा, फिर भी मैं नहीं रुका, फिर भी मेरी ट्रेनिंग जारी रखी। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करके मानेगा? तो हमने कहा कि आयरन मैन, हमें आयरन मैन बनना है। 2018 में रिटायरमेंट के 1 साल 2017 में मैंने रिटायरमेंट लिया जुलाई में, और 2018 अप्रैल में मैं साउथ अफ्रीका गया आयरन मैन करने के लिए। उसमें आपको 3.86 किलोमीटर ओपन सी स्विमिंग है, और जब 3.8 ओपन सी में जाते हो तो वो 4 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कट करने पड़ेंगे, टर्न्स एंड पानी आपको कहाँ ले जाए फिर आपको टर्न करना पड़ेगा। तो वापस आइए, 180 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी है, 180 साइकिल छोड़िए, 42.2 किलोमीटर आपको रन करना है। तो उन सब चीज़ों की जब आप ट्रेनिंग करते हो कहीं पर, तो लोग आपको पागल ही कहेंगे कि क्योंकि वो 17 घंटे का इवेंट है, और वो आपकी क्षमता की आप उसको कितने में पूरा करते हो। लेकिन जब आपको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको शरीर को तो उस जगह तक ढालना होगा, नहीं तो आपको क्रैम्प आ जाएगा कहीं पे, आप बेकार फिर आप आगे की यात्रा ही नहीं तय कर सकते। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग में आपको उससे बड़ा टारगेट अचीव करना पड़ता है। अगर 42 वहाँ पे दौड़ना है और धूप में दौड़ना है, तो आपको धूप में ही यहाँ पर अपने आप को 50-60 किलोमीटर दौड़ाना पड़ेगा, ताकि वो 50 का जोर 42 में लगे। तो इसके पीछे ये कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो सुबह आप साइकिल के लिए निकले तो 200 किलोमीटर साइकिल चलाई, साइकिल छोड़ के फिर आप क्या रनिंग कर रहे हो, तो जो भी आपको देख रहा है वो यही कहेगा कि ये बंदा पागल ही है। लेकिन उस आयरन मैन में मेरा क्या हुआ कि 110 किलोमीटर पे साइकिल का जो डीरेलर होता है जो वो टूट गया। मैं गिरा, मैं रोड पे गिरा, पूरा घुटना मेरा इंजर्ड हो गया, पूरा खून बहने लगा, एंकल मेरा ट्विस्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास एक वॉलंटियर आया, उसने कहा कि भाई आपके 100 मीटर पीछे बाइक मेंटेनेंस टेंट है, तो उस बाइक को मैंने ठीक करवाया। मतलब साइकिल को बाइक बोलते हैं, रोड बाइक। साइकिल को ठीक कराया, साइकिल उन्होंने सिंगल गियर वाली कर दी, लाइक हमारी हीरो टाइप की। 70 किलोमीटर 4 अपहिल और 4 डाउन हिल थे, उन सबको पार करके 7 घंटे सिंगल गियर के साथ में 7 घंटे और 37 मिनट में पूरी साइकिलिंग 180 किलोमीटर में मैंने पूरी की। और जो एंकल ट्विस्ट हो गया था, मुड़ गया था, दर्द था, 42.2 किलोमीटर रनिंग मैंने उसी दर्द के साथ में की।
और टोटल जो डिस्टेंस थी मैंने 14 घंटे और 19 मिनट में मैंने पूरी की, जो कि 17 घंटे 17 घंटे का। तो मैंने कहा कि ह्यूमन कैन डू एनी डैम थिंग। और जब मेरे जैसा व्यक्ति जिसका फेफड़ा फटा हुआ हो, उसके सारे इतने सारे एक्सक्यूजेस मेरे पास में थे कि मैं चाहता तो मैं कुछ भी बहाना बना सकता था। मैं जब गिरा जब बहाना बना सकता था, या फिर मैं जब मैंने मैराथन की यात्रा शुरू की तब मैं बहाना बना सकता था। तो मैंने कहा एफर्ट्स एंड एक्सक्यूजेस कैन नॉट रन पैरेलल। मैं उसी के ऊपर आने लगा था। तो मैंने महसूस किया कि मैं पहले एक्सक्यूज वाला बंदा था, मैं नहीं दौड़ना चाहता था क्यों, हर जगह पे सिंपैथी नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये शरीर जो ह्यूमंस का है वो असीमित है, आप इससे जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन बस आपको सोचने की जरूरत है और उसको फिर आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल हम आपसे प्रवीण जी जरूर पूछेंगे कि जो घटना 26/11 की हुई, उस 26/11 की घटना से पहले की जिंदगी प्रवीण तेवतिया की और उस घटना के बाद की आज की, क्योंकि उस घटना को घटे हुए कम से कम 14 साल हो चुके हुए हैं, 14 साल से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। पिछले 2022 में 14वीं बरसी जो है वो मनाई गई है। सो 14 साल उस पूरी घटना को हो चुके हुए हैं। उस घटना से पहले के प्रवीण तेवतिया को और उस घटना के बाद के प्रवीण तेवतिया को खुद प्रवीण तेवतिया कैसे देखते हैं? मैं कहूँगा कि वो जो प्रवीण था वो डिफरेंट था, ये वाला जो प्रवीण है बिल्कुल डिफरेंट है। उस प्रवीण के सोचने समझने का जो नज़रिया था वो डिफरेंट था। ये वाला जो प्रवीण है इंजरी के बाद, इसके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहला वाला प्रवीण शाइनिंग पार्ट को देखता था कॉइन के, ये वाला प्रवीण शाइनिंग पार्ट को कम देखता है और ग्रे पार्ट को देखने की ज़्यादा कोशिश करते। सामने तो दिख रहा है ठीक है, लेकिन पीछे क्या है, उसके पीछे जो मेहनत है या उसके पीछे क्या क्या छिपा हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रे पार्ट है उसको कोई दिखाना नहीं चाहता। वो सामने वाला शाइनिंग पार्ट हर कोई दिखाएगा अपनी लाइफ में, ये मैसेज है, लेकिन जो ग्रे पार्ट है वो बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। अगर आप कॉइन के ऊपर लाइट डालोगे तो कॉइन तो सामने से चमकेगा, लेकिन उसका आप पीछे से जो इमेज बनती है उसकी डार्क साइड है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। कि एक व्यक्ति यहाँ तक खड़ा हुआ है तो उसकी पूरा का पूरा जो पुरुषार्थ है, पूरी मेहनत है, उसको कहाँ से कहाँ तक लेकर आई है। प्लस जो थॉट प्रोसेस है वो पहले प्रवीण के इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे। वो मैच्योर्ड था उस लेवल पे, अपने लेवल पे मैच्योर्ड था, लेकिन इस प्रवीण ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, किस तरह से लोग विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं, किस तरह से इस देश के लोग एक सैनिक को देखते हैं, किस तरह से नेता एक सैनिक को देखते हैं, किस तरह से सिस्टम जो बने हुए हैं देश के वो एक सैनिक को किस तरह से देखते हैं, प्लस आपका परिवार आपको किस तरह से देखता है। तो ये सारी चीज़ें उस प्रवीण ने झेली। और कहे कि लोग मुझे बहरा भी कहते थे, लूला भी कहते थे, लंगड़ा घोड़ा भी कहते थे, और हर रोज़ मुझे यूनिट में बेइज्जती सहनी पड़ती थी, क्योंकि डिसरेस्पेक्ट। वो क्या थी, जब भी फालन में खड़े होते थे तो यही कहा जाता था कि लंगड़े लूले फॉल आउट। तो उनमें से एक ही मैं निकल कर बाहर आता था, क्योंकि मैं ही था ऐसा। तो वो जो शब्द थे कि एक सैनिक को लंगड़ा लूला जिसने अपने देश के लिए गोली खाई, उसको कैसे कोई कह सकता है। तो ये शब्द मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ किसी और के लिए हो, लेकिन एक मैं अगर इस देश के लिए लंगड़ा घोड़ा बना हूँ, लंगड़ा लूला हुआ हूँ या क्रिपल्ड हुआ हूँ, तो इस देश की आन बान शान के लिए हुआ हूँ। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। फिर मैंने वहीं पर अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करना शुरू किया। मैंने ग्रेजुएशन की, डबल पीजी की, और अभी के टाइम में मैं लॉ कर रहा हूँ। तो अभी भी मेरी यात्रा जारी है और मैं हर चीज़ को एक वाइड रेंज में देखना चाहता हूँ कि देश किस स्थिति से गुजरता है और किस तरह से लोगों की सेवा की जाए। और फिर मैंने कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की, ताज ज्वाइन किया था, फिर छोड़ दिया था। मुझे लगा कि देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनको प्रकाश दिखाएं, उनको रास्ता दिखाएं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जलूँ और लोग उस प्रकाश में आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रवीण इस तरह का है। पहले वाला प्रवीण डिफरेंट था, वो अपने बारे में सोचता था कि यार इतना अब ये प्रवीण दूसरों के बारे में, कि देश के बारे में, कि ये देश को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसकी कैसे मदद की जा सकती है, किसको कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है, किसको कैसे करियर बनाने में किस तरह से हेल्प की जा सकती है। मेरी बहनें हैं
उनको कैसे सेल्फ डिफेंस सिखाई जा सकती है, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है कि हमारी बहन बेटियां आराम से बाहर घूमें, किसी से ना डरें। तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास वो कैसे आएगा, जब वो ट्रेनिंग लेंगे तभी आत्मविश्वास आएगा, बिना ट्रेनिंग के नहीं आएगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर मुझे बेटियाँ मिल जाएँ, बच्चियाँ मिल जाएँ, तो मैं उनको सेल्फ डिफेंस उनको सिखाता हूँ। तो उनके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो वो वाला प्रवीण नहीं था, ये वाला प्रवीण डिफरेंट है। तो मैं कहूँगा उस प्रवीण को मैंने एक साइड में कर दिया, उसको दफना दिया एक नए वर्जन्स को, क्योंकि आपको नया वर्जन लाना ही होता है और दुनिया उसी को पसंद करती है। एक वर्जन के लाइक अगर धोनी एक ही शॉट को मार रहा है तो लोग उसको ज़्यादा दिन तक पसंद नहीं करेंगे, या कि विराट कोहली एक ही शॉट मार रहा है, या मैसी एक ही तरह के शॉट मारता है, या एक ही तरह के ड्रिबलिंग करता है, तो जो अगेंस्ट द टीम है उनको पता चल जाएगा कि ये यही शॉट मारेगा, तो वो डिफरेंट बॉल डालेंगे। तो वो जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अपना वर्जन चेंज करते हैं, अपना शॉट चेंज करते हैं, तो मुझे भी इसी तरह से अपने लाइफ के गोल अलग अलग रखने चाहिए, अपने अलग अलग वर्जन्स देने चाहिए, ताकि लोग उसको पसंद करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ में जुड़ें। लोग एक ही प्रवीण को ये ना देखें कि भाई सिर्फ एक कमांडो है, ये इसको बस एक कमांडो को सिर्फ गोली चलाना ही आता होगा। नहीं, मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी चैनल वाले देख रहे हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अपना ध्यान रखें, हेल्थ का जो ध्यान है वो बिल्कुल आपको रखना है, क्योंकि मैं कहूँ कि हेल्थ को कमाना पड़ता है। हेल्थ, एक बार आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, शरीर मिल गया, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इसकी हेल्थ, इसके शरीर का, इसका ध्यान, सुरक्षा, रक्षा हम कैसे करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस शरीर का, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दिया, वो इस देश का ध्यान रखेगा, अपने परिवार का भी उसी तरह से ध्यान रखेगा। ठीक है, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सो ये सन कर्नल प्रवीण तेवतिया, जो कि ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 26/11 ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੋਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵੀਣ तेवतिया ਰਹੇ। किस तरीके दे नाल उत्थे घटनावां वापरियां, किस तरीके दे नाल अपने शरीर नूं AK-47 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कह दीए कि छल्ली करवा के अपना फेफड़ा तक फड़वा के देश नूं बचाया। उस दिन उस घटना नूं होर बद तो बदतर होण तो बचाया। ते नालों नाल हुण जरूर दसदे ने कि जदों ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ तेवतिया पिछे छड्ड अज नवे ਪ੍ਰੇਮ तेवतिया बने ने, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਨ ਨਰੂਲਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।